So, welcome students. This is the new lecture of solution. तो स्टूडेंट्स अभी तक अपन ने जो राउल्स लॉ अपन ने पढ़ा था बच्चों, दैट राउल्स लॉ इज एक्चुअली एप्लीकेबल टू अ सॉल्यूशन known as ideal solution. What we refer that solution as a student? Ideal solution. It means those questions which we have completed in Raoult's law is actually the type of ideal solution. Like we have done one question in which the benzene and toluene is given. So student, that benzene and toluene solution is an example of ideal solution. So एक क्वेश्चन दिमाग में आता है बच्चों कि व्हाट इज़ एक्चुअली दिस आइडियल सोल्यूशन इज, एंड इफ देर इज़ आइडियल सोल्यूशन व्हाट इज़ नॉन आइडियल सोल्यूशन इज. क्लियर? तो in this lecture our focus is mainly on what is a meaning of ideal solution and what is non-ideal solution. Clear? And how we differentiate these solutions. So student, first we considered again the Raoult's law. So student, if we see and if we compare the Raoult's law and Henry's law, it is appear that they are resemble with each other, and therefore we considered that the Raoult's law as a special case of Henry's law. So students, here I have written that Raoult's law as a special case of Henry's law. Now why we return this, that Raoult's law is a special case of Henry's law? So just compare these law, student. According to Raoult's law, the pressure is directly proportional to the mole fraction. Now the mole fraction, which mole fraction? The mole fraction of volatile component. Clear? The pressure is directly proportional to mole fraction of volatile component. So if the component is volatile, then it is converted into vapor, and then vapor pressure is developed, and that pressure is directly proportional to its mole fraction in a liquid phase. So that mole fraction is liquid phase. Now if we remove this directly proportional sign, students, we will get P is equals to P naught into chi. Likewise, if we considered the gas as a volatile component which is dissolved in liquid, that Henry's law states. Clear? So definitely the gas is a volatile component. If it is dissolved in a liquid, then the pressure is directly proportional to chi. So here student, this is also pressure, this is also pressure. These two pressures are definitely the partial pressures. This XX, they are the mole fraction. This is mole fraction in liquid phase. This is also the mole fraction in liquid in which the gas is dissolved. Now if we remove this directly proportional sign, here we get KH. Now what is this KH? This KH is the Henry's law constant. Now student, this KH differ from P naught. Now here is the difference. Clear? So P naught is different. P naught is what? P naught is a pure vapor pressure of liquid at a given temperature. Pure vapor pressure means that liquid contain only that liquid, it does not contain any another liquid which is mixed in it. Clear? Or any other solute which is mixed in it. So here it is P naught. And what is this KH? Now here students, this KH is depend upon the gas which is actually dissolved. So definitely this KH differ from P naught, and therefore we consider that Raoult's law become a special case of Henry's law in which KH becomes equal to P naught. Clear students? तो इन्होंने ऐसा बोला कि जो राउल्ट्स लॉ है वो हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस है जिसमें आप KH को किससे रिप्लेस कर सकते हो? इफ दिस KH इज रिप्लेस्ड बाय P naught, yes, definitely it is converted into Raoult's law, and therefore we considered that Raoult's law is a special case of Henry's law. Now we comes to our topic, students, that is what is a meaning of ideal and non-ideal solution. Clear? So in this ideal and non-ideal solution, student,
what is actually the definition of ideal solution? The solution which obeys the Raoult's law. स्टूडेंट समझना इस चीज को. Over the entire range of concentration means if the solute and solvent is present in solution, then what will be the quantity of solute, what will be the quantity of solvent, but it obeys Raoult's law over the entire range of concentration is referred as ideal solutions. So what is the student ideal solution? Ideal solution बच्चों very important वो solution जो Raoult's law को क्या करेगा, obey करेगा, follow करेगा, Raoult's law के according चलेगा. That solution is considered as a ideal solution. Now students, now just see what interaction occur when the solute dissolved in solvent. Clear? तो अब अपन बच्चों इसको पहले अपन कंसीडर करते हैं कि व्हाट इज दिस इंटरेक्शन इज. सच इंटरेक्शन इज रेफर्ड एज इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस. नाउ व्हाट इज दिस इंटरेक्शंस? क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सपोज वी आर कंसीडरिंग, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन. नाउ देयर इज एल्कोहल. क्लियर? इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि एल्कोहल को बच्चों वाटर में मिक्स करते हैं लोग बाग. So this is C2H5OH. Clear? Now if only alcohol is present in a container. Now suppose you have a container and this container, students, contain only or only this ethanol, that is C2H5OH. Now you all know hydrogen bonding, students. Clear? And that is an easier topic. आप लोगों ने सबने 11th में पढ़ा होगा. Now just consider this. Now this C2H5OH बच्चों यहाँ पे लोन पेयर होंगे. दूसरी तरफ अपन इसको लेते हैं ऐसा C2H5O C2H5. सो अगर बच्चों आप इसको देखोगे तो इन दोनों के बीच में, क्लियर, इसको अपन दूसरे कलर से अगर मैं शो करूँ आपको, सो ये जो लाइन है बच्चों, क्लियर, आई थिंक कलर दूसरा लेते हैं अपन. नाउ सपोज दिस इज रेड कलर विच इज़ विजिबल डिफरेंटली. सो बच्चों ये जो यहाँ पे बॉन्ड बना, दैट बॉन्ड इज इफ द हाइड्रोजन इज एंगेज्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक FON, that is fluorine, oxygen and nitrogen. Clear? Now in this case hydrogen combine with one electronegative element with covalent bond and with another electronegative element with a special bond called hydrogen bond. So बच्चों यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड. मतलब जो दो एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं, जो दो एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में, कितने भी एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं उन सबके बीच में बच्चों कौन सा बॉन्ड होगा? द बॉन्ड प्रेजेंट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. नाउ बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड द एल्कोहल इज एग्जिस्ट एज अ लिक्विड. बच्चों अगर मान लो इस मॉलिक्यूल को मैं कंसीडर करता हूँ ए और मैं दूसरे मॉलिक्यूल को भी कंसीडर करता हूँ ए. वाई दिस इज ए? बिकॉज दिस इज इथेनॉल, दिस इज ऑल्सो इथेनॉल एंड दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड ए इंटरेक्शन. So what is this, students? This is hydrogen bond. So this hydrogen bond is, student, considered as a AA interaction. Now suppose this is alcohol and alcohol is suppose act as a solvent because large amount of alcohol is present and we add a small amount of suppose water in it. Now students, when we add water in it, what will happen? बच्चों मैंने वाटर को यहाँ पे सल्यूट इसलिए बोला है क्योंकि वाटर की क्वांटिटी अपन ने क्या ली है? कम. नाउ कंसीडर वाटर, स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ वाटर? नाउ अगेन स्टूडेंट्स, द वाटर ऑल्सो फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड. सो दिस इज अ इंटरेक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन सल्यूट पार्टिकल. सो बच्चों वाटर के, अब सपोज वाटर को मैंने माना यहाँ पे बी और इस वाटर मॉलिक्यूल को भी मैंने क्या कंसीडर किया? बी. सो देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड.
But student, here this oxygen is attached to C2H5, this oxygen is attached to C2H5, but here oxygen is attached to hydrogen. So definitely the strength of this hydrogen bond is differ from this hydrogen bond, they are not same. Clear? बच्चों आपने 11th में पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 100 किलो जूल पर मोल तक रेंज होता है. इट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट फॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ और डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. सो सपोज बच्चों इस इंटरेक्शन को अपन क्या मानते हैं, बीबी इंटरेक्शन, जो किसके बीच में है, बिटवीन द वाटर मोलिक्यूल. बट व्हेन वी ऐड, नाउ जस्ट कंसीडर ए इंटरेक्शन, दिस इज एग्जिस्ट बिटवीन इथेनॉल विच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड देयर इज अ बीबी इंटरेक्शन बच्चों जिसे अपन ने वाटर माना, this is water, and again there is a hydrogen bond which exists between the two water molecules or water molecules. Now when they are mixed together, means when water is added to ethanol, what will happen, there is a new interaction developed, that is between A and B. तो बच्चों इस इंटरेक्शन को आप क्या बोल रहे हो, सपोज इट इज कंसीडर्ड एज अ सॉल्वेंट, तो वी कॉल्ड इट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. इसको बच्चों अपन क्या बोलेंगे, वी कॉल्ड इट सल्यूट इंटरेक्शन. एंड व्हेन दे आर मिक्स टुगेदर अ न्यू इंटरेक्शन इज डेवलप्ड, दैट इज रेफर्ड एज सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. तो इसको बच्चों आप क्या बोलोगे, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. अब इसको ढंग से समझना बच्चों, है ना. अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको. क्लियर सारे जने, बी कॉशियस. सो be concentrate on your mind at this page. Now AA interaction is a hydrogen bond, BB interaction is also hydrogen bond, and between A and B student again there is a formation of hydrogen bond, and it is formed like this. Now this is the interaction which is formed between the alcohol molecule and water molecule, but again the strength of this interaction is also different from other two interactions. Now student, just considered what I am explaining to you. Now suppose between AA interaction and the force exists between BB interaction is almost same. The force exists between AA interaction and BB interaction is almost same, but the force exists between this AB interaction is student somewhat less. Clear? मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, वो और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, वो अपन ने लगभग क्या माना, सेम. बट the force of interaction which is developed between A and B molecule, the force of interaction which is developed between A and B molecule students, A और B के बीच में जो force of interaction develop हुआ, उसको अपन ने क्या माना बच्चों, weak. अब weak interaction का मतलब क्या होता है बच्चों, weak interaction का मतलब है उन दोनों के बीच में force कम है. force कम है मतलब उनके बीच में बच्चों distance क्या हो जाएगी, increase. weak force मतलब लेस अट्रैक्शन मतलब डिस्टेंस बिटवीन, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, ऐसा बोल सकते हैं. क्लियर? मतलब जो डिस्टेंस बच्चों इन दोनों के इंटरेक्शन और इन दोनों के इंटरेक्शन में है वो लगभग सेम है, बट ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, इंक्रीज. इसको बच्चों अपन ऐसा देख सकते हैं, इसको वापस अपन समझते हैं. नाउ सपोज दिस इज द वन स्टूडेंट. क्लियर बच्चों, ये मैंने कार्टून बनाया, ठीक, और दिस इज द अनदर स्टूडेंट. ठीक, इन दोनों ने बच्चों अपने हाथ पकड़े हुए एक दूसरे के. क्लियर? शेक किया हुआ है. इन दोनों के बीच में सपोज बच्चों डिस्टेंस है, सपोज ये दोनों बच्चों के बीच में डिस्टेंस है d. ऐसे ही मैंने एक और बच्चों 2 स्टूडेंट्स और बनाए यहाँ पे, और उन्होंने भी शेक किया हुआ है. ठीक है, कार्टून थोड़ा सा गंदा है बच्चों, बट समझने के लिए ठीक है. इनके बीच में भी लगभग जो डिस्टेंस है दैट इज़ d, मतलब दिस डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट सेम. बट जो अब
इसमें से बच्चों एक स्टूडेंट आया और इसमें से एक स्टूडेंट आया, इन दोनों स्टूडेंट के बीच में बच्चों सपोज दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। अभी यहाँ पे आया ए और इधर से आया बच्चों बी। अब अपन ने क्या करा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या हो गई, इंक्रीज। मतलब इनके बीच में बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, डिक्रीज। सो देयर इज़ अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, मीन्स देयर इज़ अ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। अब बच्चों आप इसको ऐसे समझो कि अगर ए इंटरेक्शन है, इन्होंने दोनों बच्चों ने अपना एक हाथ क्लोज किया हुआ है, इन्होंने भी अपना बच्चों एक हाथ पकड़ा हुआ है और इन दोनों के हाथ के बीच में बच्चों डिस्टेंस है। अब अगर मैं आपसे बोलूं सपोज व्हाट इज़ अ मीनिंग ऑफ वोलेटिलिटी, द बच्चों मीनिंग ऑफ वोलेटिलिटी इज सपोज इफ दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, क्लियर। नाउ देयर इज अ बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। अगर बच्चों ये वाला वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाता है, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस और ये वाला वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। So to evaporate this water molecule or this water molecule, we have to break this intermolecular force of attraction. Plus we have to provide energy to this water molecule to convert it into a vapor. Likewise students, in this case, if we want to vaporize A and B after mixing, समझना बच्चों, we want to vaporize A and B after mixing, but there is a less force of attraction between them. सो ये ऑलरेडी बच्चों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तो अगर मान लो मैं इसको वेपराइज करना चाहूँगा तो इट इज़ ईजियर टू वेपराइज ए एंड बी। वाई? बिकॉज बिटवीन ए एंड बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। मतलब ये जो दोनों मॉलिक्यूल है बच्चों, ये बड़ी आसानी से क्या हो जाएंगे, वेपराइज। क्लियर। सो अब बच्चों अपन देखते हैं हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल। सो वी हैव अ 3 केसेस लाइक दिस। Now suppose this is AA interaction, this is BB interaction and third is AB interaction. Clear? Now what is the first case? The first case is a student. What is this first case? The force of attraction between AA and BB is nearly same and it is almost nearly same to AB interaction. मतलब बच्चों जो AA और BB interaction था वो लगभग किसके बराबर है, AB interaction। मतलब कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों में था लगभग उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी। क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब इन दोनों को वोलेटाइल करना, इन दोनों को वोलेटाइल करना और इन दोनों को वोलेटाइल करना इज ऑलमोस्ट सेम। नाउ देयर इज अ सेकेंड केस। नाउ व्हाट इज दिस सेकेंड केस इज ए एंड बी इंटरेक्शन इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी में हैं उससे डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी। अब वो ए और बी में अट्रैक्शन बच्चों क्या हो सकता है, इस ए और बी में अट्रैक्शन क्या हो सकता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये चीज़ बच्चों याद रखना है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज लेस एंड इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज हाई। तो अभी अपन 2 केस कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों। बिकॉज डिस्टेंस डी इज स्मॉलर देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई एंड हियर द अट्रैक्शन फोर्स इज लो। तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, कम। तो इस इट मीन्स यहाँ पे अट्रैक्शन हाई है और यहाँ पे अट्रैक्शन लो है। तो देयर आर 2 केसेस इसके अंदर बच्चों। तो जो मैंने सेकंड केस बताया वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर देन बच्चों ए और बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन ए और बी इंटरेक्शन। एंड इन केस 3 द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन force of attraction is AA and BB is greater than AB attraction। मतलब इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा है और इसमें अट्रैक्शन कम है। यहाँ पे AA और BB के अंदर अट्रैक्शन इज लेस एंड AB के अंदर अट्रैक्शन इज मोर। तो बच्चों ये वाटर मॉलिक्यूल आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ बच्चों, हियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A and B is less and if force of attraction is less the distance is more। लाइकवाइज बच्चों अब अपन एक थर्ड केस कंसीडर करते हैं। आप लोगों ने एक कंपाउंड पढ़ा होगा जिसका नाम है बच्चों देयर इज एसीटोन। व्हाट इज दिस, एसीटोन।
Now acetone has a partial negative and here it has a partial positive, so it has a dipole moment. क्या होगा बच्चों, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब प्लस और माइनस चार्ज सेपरेट होंगे. और दूसरा बच्चों अपन ने लिया CHCl3, इसमें भी ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस, सो इसमें भी बच्चों डाइपोल मोमेंट होगा. नाउ इफ द सोल्यूशन कंटेन ओनली एसीटोन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एसीटोन एंड एसीटोन ये कैसा होगा बच्चों, इट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. क्या बोलोगे आप उसे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. ऐसे ही बच्चों बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म, मतलब बिटवीन द टू मोलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म, सो बच्चों क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म के बीच में भी क्या होगा, डाइपोल डाइपोल. मीन्स either it is a acetone or it is a chloroform, the force of attraction student is same, that is dipole dipole moment. But अब just see this, if these two are mixed together, acetone and chloroform को बच्चों अपन ने क्या कर दिया, mix. अब आप इसको देखो, जैसे ही आप इसको मिक्स करोगे स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है बच्चों, इसके बीच में क्या बन जाएगा, बिटवीन दीज टू हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड. और ऐसा अपन ने बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर इन कंपैरिजन टू नॉर्मल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. मीन्स इसके बीच में जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, इसके बीच में जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, इन दोनों डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड. मतलब जो क्लोरीन एसीटोन एसीटोन के बीच में जो बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है, एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्स विच इज एग्जिस्ट बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म इज हायर. इट मीन्स ये कौन सा केस हो गया बच्चों, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ second case where the force of attraction AA and BB is less than AB. मतलब बच्चों जितना फोर्स दो एसीटोन में लग रहा है, जितना फोर्स क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म में लग रहा है, उससे ज़्यादा फोर्स किस में लग रहा है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन. मतलब इन दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो वीक है, इन दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो वीक है, बट जब दोनों को मिक्स किया तो उनकी जो फ्रेंडशिप है दैट इज स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग का मतलब इन दोनों ने अपने एक दूसरे के हाथ बहुत तेज़ी से पकड़ रखे हैं बच्चों, तो इनको अलग करना, वोलेटाइल करना, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क. उसी की जगह यहाँ पे कैसा था बच्चों, एल्कोहल एल्कोहल की फ्रेंडशिप कैसी थी, स्ट्रॉन्गर. वाटर वाटर की फ्रेंडशिप कैसी थी, स्ट्रॉन्गर. बट एल्कोहल और वाटर की फ्रेंडशिप कैसी थी, वीकर. और इसकी फ्रेंडशिप वीकर होगी तो बच्चों डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा. क्लियर. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, लेस. तो अगर बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो गया तो इनको तोड़ना आसान है, जबकि इसको तोड़ना इज डिफिकल्ट टास्क. तो अपन ने दो केस लिए बच्चों, एक जिसमें ए और बी के अंदर इंटरेक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज, और एक जिसमें ए और बी में इंटरेक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज. बच्चों जिसमें इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाएगा उनको ब्रेक करना इज़ डिफ़िकल्ट, और जिनमें ब्रेक करना इज़ ईजियर, और जिसमें अट्रैक्शन बढ़ जाएगा उनको ब्रेक करना इज़ डिफ़िकल्ट टास्क. इन दोनों को अलग आप आसानी से नहीं कर सकते. जबकि बच्चों फर्स्ट केस कैसा था, जितना आप ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन कंसिडर कर रहे हो उतना ही ए बी इंटरेक्शन है. मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ऑल थ्री केसेस इज ऑलमोस्ट सेम. सो जितना ईजियर ए और बी को डिफरेंशिएट अलग करना है, द सेम मच ईजियर इज इन केस ऑफ ए एंड बी ऑल्सो. आई थिंक बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. मैंने यहाँ पे क्या समझाया आपको, मैंने यहाँ पे समझाया इंटरेक्शन बिटवीन सल्यूट सल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सल्यूट सॉल्वेंट. क्लियर. अब इसको बच्चों अपन दूसरे तरीके से कंसीडर करते हैं. नाउ अगेन फर्स्ट केस बच्चों अपन ने कंसीडर किया कि ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन इज नियरली इक्वल टू ए बी. दूसरा कंसीडर किया बच्चों ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन ए बी. और थर्ड कंसीडर किया बच्चों ए एंड बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए बी. क्लियर. सो ये बच्चों इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन. सो यहाँ पे अट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट
सेम। यहाँ पे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन इज लेस, इनके बीच में अट्रैक्शन इज मोर। मीन्स this is an example of benzene plus toluene. This is an example of alcohol plus water, and this is an example of acetone plus chloroform. अब बच्चों चीज़ देखना आप कितनी इंपॉर्टेंट है। just see, here the attraction is almost same. Now suppose that 10 ml of benzene when mixed with 10 ml of toluene, the total volume is, तो जनरली बच्चों अपन मैथ्स लगाते हैं, दोनों का 10-10 लिया तो कितना हो गया 20 ml। क्लियर? मतलब दिस इज V1 प्लस V2। क्लियर? सो टोटल वॉल्यूम इतना आया और ये वॉल्यूम अपन ने ऐड करके टोटल वॉल्यूम निकाला बच्चों। इन दिस केस सपोज एल्कोहल इज 10 ml, वाटर इज 10 ml। स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम? सो अकॉर्डिंग टू आर मोल कंसेप्ट मैथमेटिक्स, अब ये बड़ी क्लासिक चीज़ है बच्चों, मोल कंसेप्ट के हिसाब से आप इसका आंसर क्या लगाते हैं 20 ml, बट दैट आंसर इज, दिस आंसर इज रॉन्ग। Now why this answer is wrong student? क्योंकि यहाँ पे AA 10 ml था, BB 10 ml था, but because when they are mixed together the force of attraction is less। जब अट्रैक्शन लेस होगा तो बच्चों A और B के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज मोर। तो बच्चों मोलैरिटी में अपन ने पढ़ा था, अगर आपको पता हो तो, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ती है और उससे वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज। मतलब यहाँ पे भी बच्चों क्या होगा 10 ml और 10 ml अपन ने डाला, बट आंसर क्या आएगा, इट इज ग्रेटर देन 20 ml। कितना आएगा बच्चों आंसर? ग्रेटर देन 20 ml। अब कितना क्लासिक क्वेश्चन है, अगर आपसे ऐसा बोले 10 ml एल्कोहल और 10 ml वाटर को मिलाएंगे, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बच्चों, और आपको आंसर दे 18, 19, 20 एंड 22। क्लियर? तो कम तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। 20 ये भी पॉसिबल नहीं है, तो बच्चों आंसर कितना हो गया 22 ml। मतलब कितनी यूनिक चीज़ है, जिसको अपन आज तक ये समझते आते थे कि 10-10 ml मिलाएंगे 20 हो जाएगा, वैसा इस केस के अंदर पॉसिबल नहीं है। लाइकवाइज बच्चों जस्ट कंसीडर इट एज अ, सपोज एसीटोन इज 10 ml, क्लोरोफॉर्म इज 10 ml। नाउ व्हाट इज द फाइनल सोल्यूशन? अगेन बच्चों आपके दिमाग में क्या आएगा 20 ml, बट अगेन इट इज रॉन्ग। वाई रॉन्ग? बिकॉज हियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज मोर। और बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज़्यादा होगा तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और डिस्टेंस डिक्रीज हुई मतलब वॉल्यूम विल श्रिंक, एंड वॉल्यूम श्रिंक होने का मतलब बच्चों यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज लेस देन 20 ml। मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो सकता था बच्चों 18 और 19। क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, 19, 20, 21, 22. So 22 is not possible, 21 is not possible, 20 is not possible. Therefore, in this case, the correct answer is 19. अब ये जो अपन ने निकाला बच्चों ये क्या है? सो ये आपका फाइनल वॉल्यूम जो आपका मेजर से आया, और ये आपने जो ऐड किया। क्लियर? नाउ सपोज दिस इज V1 प्लस V2 एंड दिस इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग सिलेंडर। सो ये बच्चों एक्सपेरिमेंटल हो गया। तो इसका दिस माइनस दिस मतलब मेजरिंग सिलेंडर से जो आपका वॉल्यूम आया दैट वॉल्यूम माइनस V1 प्लस V2, इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, वी कंसीडर इट एज अ डेल्टा V। नाउ जस्ट सी, मेजरिंग सिलेंडर ने जो वॉल्यूम दिया वो कितना दिया 20। सो सपोज इट इज 20 माइनस इसका कितना हुआ 10 प्लस 10 दैट इज ऑल्सो 20। सो दिस इज इक्वल्स टू 0। अभी बच्चों ये केस कंसीडर करते हैं। नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ मेजरिंग सिलेंडर 22।
सो व्हाट इज डेल्टा वी? 22 माइनस आपने क्या ऐड किया था? 10. सो अकॉर्डिंग टू यू द आंसर शुड बी 20, बट हियर डेल्टा वी कितना आया बच्चों? 2 ml, मीन्स इट इज पॉजिटिव, वेयर एज इन दिस केस जस्ट स्टूडेंट फाइनल आंसर कितना आया था? 19, आना कितना चाहिए था? 20. कितना आंसर आया? -v. मीन्स when we add the volume in first case, the delta V, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? We called it delta V mixing. That delta V mixing is 0. In this second case student, इसे अपन क्या बोलते हैं? delta V mixing, and this delta V mixing is greater than 0, means it is positive. Likewise third case में बच्चों अपन क्या बोलेंगे? In third case the delta V mixing is less than 0 and this is negative. क्लियर? सो अगर इन तीनों को देखें बच्चों अपन, तो यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग 0, यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0. नाउ कंसीडर सपोज ऑल आर वोलेटाइल, मतलब बच्चों इनका वेपर तो बनना ही है. नाउ इफ वी कंसीडर द वेपराइजेशन, जस्ट लिसन स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में सेम है. इट मीन्स यहाँ पे आपका जो प्रेशर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, दैट इज राउल्ट्स लॉ. और आपका बच्चों जो पी ए है वो किसके बराबर आ जाएगा? पी नॉट ए इंटू काई ए, एंड पी नॉट बी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? पी नॉट बी इंटू काई बी. तो पी बी किसके बराबर हो गया? पी नॉट बी इंटू काई बी. But in this case, now this is the case where the force of attraction between the solute and solvent is less. मतलब बच्चों अपन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मतलब ये आसानी से क्या हो जाएगा? वोलेटाइल. और अगर ये आसानी से वोलेटाइल हुआ, मतलब जो वेपर प्रेशर है बच्चों जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे वैल्यू उससे ज़्यादा आएगी. सो व्हाट राउल्ट्स लॉ सेज? राउल्ट्स लॉ बोलता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए? मोल फ्रैक्शन. बट यहाँ पे बच्चों जो अपन ऑब्जर्व्ड करेंगे, ऑब्जर्व्ड प्रेशर, जैसे आप क्या बोलोगे बच्चों? पी ए दैट इज ऑब्जर्व्ड, दिस पी ऑब्जर्व्ड स्टूडेंट इज ग्रेटर देन, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से क्या आना चाहिए था इसका वैल्यू? पी नॉट ए इंटू काई ए. बट यहाँ पे बच्चों क्या आएगी वैल्यू? पी ए इज ग्रेटर देन. आपके थियोरेटिकल हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए था? राउल्ट्स लॉ के हिसाब से दिस मच. बट बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा वेपर बनेगी. जो पी ए आएगा दैट इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू काई ए. लाइकवाइज द पी बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू काई बी. लाइकवाइज बच्चों यहाँ पे क्या होगा? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, दिस इज नॉट ईजिली वेपराइज. फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग है कि आप आसानी से तोड़ नहीं सकते. तो जो आप पी ए ऑब्जर्व करोगे वो लेस देन क्या आएगा बच्चों? पी नॉट ए इंटू काई ए. और पी बी क्या आएगा बच्चों? लेस देन पी नॉट बी इंटू काई बी. क्लियर? लाइकवाइज स्टूडेंट अगर अपन यहाँ पे देखें, इनको ब्रेक करेंगे अपन, सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड और यहाँ पे एनर्जी इज रिलीज्ड. तो जब आप इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स करोगे तो क्या होगा? देर इज अ ब्रेकिंग ऑफ दीज टू बॉन्ड एंड देर इज अ मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड. So there is a change in enthalpy, and that delta H mixing student, because the force of attraction is almost same, it is nearly equal to 0. So delta H mixing is 0. But here students, because the force of attraction in the reactant is more, and here reactant means solute and solvent is less, more, and A and B attraction in solute and solvent, that is in solution, is लेस. सो इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, बच्चों इनको तोड़ना है और इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और इसके अंदर जो रिलीज होगी वो क्या होगी बच्चों? कम. सो सपोज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड इज 0.5 +5. हियर ऑल्सो सपोज इट इज +6, बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज डेवलप्ड बिटवीन दीज टू इज लेस. सो द एनर्जी रिलीज इज सपोज ओनली -8. बिकॉज एनर्जी रिलीज को बच्चों क्या लिखते हैं? -8, और रिक्वायर्ड को क्या लिखते हैं? तो 5 + 6 कितना हुआ? सो इट इज 11 एंड -8. तो आपका डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आया बच्चों? इट इज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव.
Clear? Means the amount of energy required is more and released is less. The reverse takes place here because here the force of attraction between the AA and BB is less and AB is more. मतलब यहाँ बच्चों एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी. जैसे इसको कंसिडर करें 5 और 6, बट ए और बी में अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो व्हेन द बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म्ड द मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. और जब ये एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी बच्चों तो सपोज इट इज -12. सो रिक्वायर्ड एनर्जी इज 5 और 6, दैट इज 11 एंड रिलीज इज 12. तो बच्चों डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगा? लेस देन 0, दैट इज यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव. क्लियर? तो ये वाले जो केस है बच्चों, जो ये मैंने ये वाला केस बताया, अगर मेरा पी ए किसके बराबर आ रहा है? पी नॉट ए इंटू काई ए, एंड पी बी किसके बराबर आ रहा है? पी नॉट बी इंटू काई बी, वी कॉल्ड दैट इट ओबेज द राउल्ट्स लॉ. बट हियर द पी ए एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए और पी नॉट बी इंटू काई बी. मतलब इन दोनों को अगर मैं एक साथ मिक्स करूं बच्चों तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए and PB is not equal to P naught B into chi B. It means these two solution does not obeys Raoult's law. पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के बराबर अगर आता है तो आप उसे बोलते हो द सोल्यूशन ओबेज द राउल्ट्स लॉ. बट दीज टू सोल्यूशन डू नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ बट दे डेविएट फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ. एंड हाउ दे डेविएट? इन वन केस द प्रेशर इज मोर, इन अनदर केस pressure is less. So student, where the all things are positive, that is delta V mixing positive, delta H mixing positive, the pressure is greater than what we expect, is referred as this particular case, this particular middle case is considered as a positive deviation from Raoult's law, from ideal solution. And here the all values are delta V mixing is negative, pressures are less and delta H mixing is also negative. This is considered as a negative deviation from Raoult's law. So student, the case in which there is positive deviation and there is negative deviation, such kind of solutions are considered as a non-ideal solution, and the solution which follows the Raoult's law and all these norms, they are considered as a ideal. So these two solutions together is a part of non-ideal, not together, they simultaneously they can referred as a non-ideal solution, students. So these two solutions are referred as non-ideal, whereas this solution is referred as ideal solution. I think students आसानी से आपको clear हुआ होगा what is the meaning of ideal solution and what is the meaning of नॉन आइडियल सोल्यूशन. बट अगर आप इन सब चीज़ों को देखो बच्चों तो ये सब चीज़ों का मैंने जो आपको समझाया, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इज कमिंग फ्रॉम विच थियोरेटिकल पार्ट? फ्रॉम दिस, दैट इज AA and BB interaction. If nearly equal to AB interaction, we called it ideal, and if AA and BB interaction is not equal to means either it is greater or it is lesser. So if it is not equal to this, we called it non-ideal solution. Clear? स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप एक दो बार अच्छे से देखना और ये फीलिंग डेवलप करना आप कि कौन आसानी से वेपराइज होगा, कौन आसानी से नहीं होगा और कौन नॉर्मली वेपराइज होगा. क्लियर? तो जहाँ पे भी बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था इन दिस केस, यहाँ पे जहाँ पे दोस्ती बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बच्चों, तो उसको तोड़ना मुश्किल है, मतलब वेपराइज करना मुश्किल है. आप ये समझ के चलो उसे. जहाँ दोस्ती दोनों को मिलाने के बाद वीक हो गई, तो जब वीक दोस्ती है तो उनको अलग करना आसान है. और जहाँ पे बच्चों दोस्ती बराबर है, मीन्स द फ्रेंडशिप इज इक्वल टू द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, then it shows the same behavior. Clear? So this is actually ideal and non-ideal solution. अब बच्चों इसी का मैंने एक अच्छा सा थियोरेटिकल पार्ट बना रखा है. दिस इज़ फॉर कि आपको समझ में आए कि मैंने क्या बोला. क्लियर? तो ये जो आपका वीडियो है बच्चों, दिस इज़ फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. इसी को अच्छे से थियोरेटिकल वे में जो मैंने एक्सप्लेन किया है, दैट I will explain you in a next lecture.
बट बच्चों इस वीडियो को आप एक दो बार देखना तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला है। फिर उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, ये मैंने थियरी लिखी है फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल। आई थिंक ये अब आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी। क्लियर? अब देखो बच्चों, अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं मैंने क्या लिखा। Now just what is ideal when AA or BB interaction is nearly equal to AB at molecular level. Now non-ideal when AA or BB interaction is, तो बच्चों देखो यहाँ पे ये लाइन लग रही है, ऐसा कट लगने का मतलब it is not equal to AB at molecular level. So if the interaction is almost same in all three cases, and here if the interaction is not same, then we consider it as a non-ideal, here we considered it as a ideal. तो बच्चों this is the main point of theory from which all the things we can explain easily. Now students, what is it obeys the Raoult's law? It does not obeys the Raoult's law. Now what is the meaning of it obeys the Raoult's law? Here the PA is equals to, this is the Raoult's law student, PA is equals to P naught A into chi A and PB is equals to P naught B into chi B. And because PA and PB, now what is Dalton's law of partial pressure student? PT is equals to PA plus PB. तो यहाँ पे PA की जगह अपन ने क्या रख दिया? P naught A into chi A और PB की जगह P naught B into chi B. Means P total is exactly equal to P naught A into chi A plus P naught B into chi B. अगर ये फार्मूला डायरेक्टली लग रहा है इट मीन्स इट ओबेज द राउल्ट्स लॉ। और बच्चों अपन ने पढ़ा था बेंजीन और टोलुइन के केस में कि दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल, मीन्स ये फार्मूला अब बच्चों अपन जहाँ पे भी लगाएंगे दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू आइडियल सोल्यूशन, अदरवाइज वी विल डिविएट फ्रॉम दिस फार्मूला। सेकेंड बच्चों अपन ने क्या पढ़ा? डेल्टा एच मिक्सिंग इज ज़ीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ज़ीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब स्टूडेंट्स, if we add V1 and V2 ml of the solution and we mix them, the final volume of solution is V1 plus V2 or VA plus VB, because VA is the volume of A, VB is the volume of B. Now in this case if they are not equal, there are two possibilities is there. If AA or BB interaction is greater than AB, तो स्टूडेंट यहाँ पे इंटरेक्शन बढ़ गया AA और BB का, तो AB का कम हो गया, AB का कम हो गया, मतलब यहाँ पे एक तरीके से बच्चों डिस्टेंस क्या हो गई? इंक्रीज। मतलब द A and B आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सो दे आर डिस्टेंटली प्लेस्ड. Now in this case AB interaction is more, it means they are closer to each other. तो बच्चों इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है. What distance I am telling about? That is intermolecular distance. Now PA क्या होगा बच्चों? अब if it is Raoult's law तो PA की वैल्यू ये होनी चाहिए थी. तो PA is observed which is supposed to be greater than, और ये एक्चुअल में observed आता ही है बच्चों. It is find out to be greater than this P naught A into chi A. PB is find out to be greater than P naught B into chi B. Means this is Dalton's law. P total तो हमेशा बच्चों PA और PB के बराबर होगा, मतलब this is the partial pressure of A, partial pressure of B, दोनों को ऐड कर दो तो P total आएगा. बट because PA is greater than P naught A into chi A, तो जैसे ही आप PA को यहाँ पे रखोगे P naught A into chi A और PB को यहाँ पे रखोगे P naught B into chi B, ये जो PA और PB की वैल्यू यहाँ पे आई है this is not same. This PA is greater than this, PB is greater than this, therefore P total is greater than this. And if this is not equal, it means it does not obey Raoult's law. Now the same applicable here in negative deviation. Pressure which is supposed to be, जो अपन को observe मिलेगा, होना ये चाहिए था according to Raoult's law, but अपन को क्या मिलेगा? Less. Why? Because attraction is more, so they are not easily volatile. So if they are not easily volatile or vaporize, the pressure which we expect according to Raoult's law is not same. जो अपन Raoult's law से expect कर रहे हैं उससे वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों? कम आने वाली है. So यहाँ पे PA की वैल्यू is less than P naught A into chi A and PB की वैल्यू is again less than P naught B into chi B. But Dalton's law of partial pressure तो applicable है, PA plus PB के बराबर होगा. बट यहाँ पे बच्चों because PA और PB is P total, but PA is less than P naught A into chi A and PB is less than
P naught B into chi B. So overall P total की वैल्यू इज लेस देन दिस. नाउ डेल्टा H मिक्सिंग जैसा मैंने बताया बच्चों वहाँ पे इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. डेल्टा V मिक्सिंग इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. तो बच्चों जहाँ पे सब चीज़ें बढ़ रही है, देखो आप टोटल प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, डेल्टा V मिक्सिंग पॉजिटिव आ रही है, डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव आ रही है, तो सब जगह पॉजिटिव जा रहा है, तो अपन ने इसे क्या बोल दिया, पॉजिटिव डेविएशन. और यहाँ पे सब जगह पे वैल्यूज़ क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज़. यहाँ पे डिक्रीज़ आ रहा है प्रेशर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे. यहाँ पे डेल्टा H मिक्सिंग भी नेगेटिव आ रहा है, मतलब डिक्रीज़ आ रहा है, डेल्टा V मिक्सिंग भी डिक्रीज़ आ रहा है. दिस वी कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव डेविएशन. क्लियर स्टूडेंट्स? सो जो मैंने समझाया उसको यहाँ पे समराइज करके दिया हुआ है. दिस इज आइडियल एंड दिस इज नॉन आइडियल. नॉन आइडियल इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन एंड वन विच शोज नेगेटिव डेविएशन. क्लियर स्टूडेंट्स? अब अपन को जो बच्चों याद रखने हैं इनके व्हाट एग्जाम्पल्स. अब एग्जाम्पल्स में बच्चों आप एक चीज़ याद रखना कि कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कुछ तो मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझाया, जो एग्जाम्पल एक्सप्लेनेबल थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए. बट सम एग्जाम्पल में आप जब फार्मूला देखोगे ना तो आपको फार्मूला देख के पता नहीं चलेगा कि दिस सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन. मतलब कुछ एग्जाम्पल्स को बच्चों अपन को लर्न करना है. सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मक करना है, मीन्स आपको उसका रट लेना है. क्लियर? तो रटाफिकेशन करना है. तो वो एग्जाम्पल्स बच्चों में आप लोगों को लिखवाऊँगा, ठीक, कि सोल्यूशन विच शोज positive deviation, solution which shows negative deviation. But the important part is that the example of textbook should be remembered. ऐसा क्लियर? तो वो आपको बच्चों रिमेंबर करने ही हैं. क्लियर? सो ये बच्चों अभी आइडियल और नॉन आइडियल ख़त्म नहीं हुआ है ना. ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि अगर डेफिनेशन वाइज लिखना होता है तो अपन कैसे आइडियल और नॉन आइडियल को क्या करते हैं बच्चों, डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों इसी को अपन थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे. बट दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज़ एज सच एजियोट्रॉप करके बच्चों वो समझेंगे वो क्या होता है. बट देर आर सम ग्राफ विच इज़ एक्चुअली नॉट गिवन इन आर टेक्स्ट बुक बट विच इज़ यूजफुल टू अस, विच एक्सप्लेन्स सो मैनी थिंग्स अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. उस चीज़ को बच्चों अपन लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक बच्चों सबको समझ में आया होगा. ठीक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैंने आपसे बोला बच्चों ये तो मैंने समराइज करके लिखा हुआ है. आप जो इसके पहले मैंने समझाया किस तरीके से मैंने उसे एक्सप्लेन किया, एक बार अगर वो आप विजुअलाइज कर लोगे. इसमें विजुअलाइजेशन बच्चों इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आए, बहुत ज़्यादा पास आ गए तो उसको वेपराइज करना, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है. क्लियर? तो अगर मान लो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं और बहुत ज़्यादा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों तो उन्हें वेपराइज करना जो है दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ मोर. बट अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर है बच्चों तो जो ऑलरेडी दूर है उन्हें दूर करना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क. जो दूर है उन्हें आप आसानी से दूर कर सकते हो, बट जो पास है उन्हें दूर करना डिफरेंट है. तो जहाँ पे भी बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा आ जाने का मतलब वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के पास है. पास है मतलब उनको वोलेटाइल करना इज़ डिफ़िकल्ट. मतलब वहाँ पे वेपर प्रेशर जो आप एक्सपेक्ट करोगे, मीन्स राउल्ट्स लॉ जो एक्सपेक्ट करेगा वैल्यू उससे कम आने वाली है. और जहाँ पे बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मतलब जहाँ पे मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन सोल्यूशन फेज, तो वहाँ पे कैसा है बच्चों उनको अलग करके वेपराइज करना इज ईजियर टास्क. मतलब जो आप एक्सपेक्ट करोगे उससे ज़्यादा वेपर बनेगी. जहाँ पे बच्चों ज़्यादा वेपर बने दैट इज़ अ पॉजिटिव डेविएशन, जहाँ पे कम वेपर बने दैट इज़ अ नेगेटिव डेविएशन, और जहाँ पे वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ बने दैट इज़ एन आइडियल सोल्यूशन. आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा. सो दिस इज़ अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल. In next lecture also we will continue with the same topic, that is ideal and non-ideal, the different aspect of this topic. Clear students? अच्छे से समझना इस टॉपिक को. अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो अपन लोग करेंगे बच्चों यहाँ पे. क्लियर? और सारे जने बच्चों अच्छे से पढ़ाई करना. स्टे एट होम, स्टे सेफ. क्लियर? थैंक यू.